नाज़रीन आदाब। प्रोग्राम चमकते सितारे में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान हफ्सा खान। आज हम आए हैं अजरा पब्लिक स्कूल अलकापुर मनीकोंडा ब्रांच, जहां हम मुलाकात करेंगे यहाँ के तमाम बच्चों से। और जैसे कि आप सभी को पता है कि अजरा पब्लिक स्कूल काफ़ी ज़्यादा फेमस है फॉर इट्स CBSE सिलेबस, जो यहाँ पे तमीज़ तहजीब तालीम, दीनी तालीम और दुनियाई तालीम यहाँ पे दी जाती है। अजरा पब्लिक स्कूल इसी के लिए काफ़ी नाम और चर्चा में रहा है। यहाँ के स्टूडेंट से हम जानेंगे एंड यहाँ के हर तमाम टीचर्स से हम मुलाकात करेंगे और देखेंगे कि यहाँ के स्टूडेंट्स में कम्युनिकेशन पावर कितनी ज़्यादा है, कैसे उनके पब्लिक रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्ग बनाए जाते हैं, कैसे इन्हें मेंटर किया जाता है। हर चीज़ आप देखेंगे, तो हमारे साथ एंड तक बने रहिए, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अगर आप मिस आउट करेंगे तो यहाँ का सारा फन किरकिरा हो जाएगा। तो हमारे साथ बने रहिए एंड तक। For the hadith I call Zuha. قال रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हदीस नंबर 18, बड़ों का अदब, फलैसा मिन्ना मल्लम युक़िब कबीरुना, जो बड़ों की इज्जत नहीं करता वो हम में से नहीं। School sanities, school attention. School sanities, school attention. Everyone stand straight for the national anthem. जैसे कि आप जानते हैं, आज हम आए हैं अजरा पब्लिक स्कूल अलकापुर मनीकोंडा ब्रांच, जहां हम मुलाकात कर रहे हैं यहाँ के तमाम स्टूडेंट से और इनके जो अंदर के हिडन टैलेंट्स है उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे मौजूद है अजरा पब्लिक स्कूल के AI एंड रोबोटिक्स लैब में, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन तमाम बच्चों को मशीन से दोस्ती करना भी इसी उम्र में सिखाया जा रहा है, क्योंकि आगे चल के जो टेक्नोलॉजी एंड AI का यूज़ होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन लाइफ में। तो यहाँ के स्टूडेंट से ही पूछते हैं कि आज तक उन्होंने जो ये मशीन लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो AI का कॉन्सेप्ट है, जो टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, उसको किस तरह से अपने अंदर इंडल्ज किया है एंड कैसे ये इन मशीनों से क्या क्या सीख रहे हैं, ये भी हम इन बच्चों से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़ेबा फातिमा है। So Zeba, tell us something about your AI and robotics lab. Welcome to Robotic Labs. It is fun and exciting place where we can learn how to build, program and control robots. Here we can learn, here we can use our creativity and problem solving skills to make machine that can move, sense and respond just like real robots. Here we can learn the basis of science, technology and the mathematics in an enjoyable way. We work with motors, sensors and simple coding tools to bring their ideas to life. Robotic labs help us to think creatively, logically, learn teamwork and communication, and while preparing the students for the technology-driven world for the future. Good morning, myself Mehreen Khan from class 7. I am studying in Azra Public School. Today I am going to talk about ChatGPT. Nowadays AI generation is going on. Regularly we use AI technology for new ideas and for smart learning. ChatGPT is an artificial intelligence chatbot from OpenAI. It stands for Chat Generative Pre-trained Transformer and was developed by an AI research company, OpenAI. Today we are going to explain you about RoboCard. So first, what is RoboCard? A RoboCard is a fun and educational project that participates robotics, mechanics and electronics. Described here is a small wheeled vehicle
which can be programmed to move or can be connected to wires to move. Today I am presenting my model Vidblocks Wi-Fi powered car, a racing car that can be controlled over Wi-Fi. I will send commands to the car through mobile phone over Wi-Fi, and the car will do real life movements such as forward, backward, left and right. This type of technology is used in areas such as robotics competitions, smart transportation systems, etc. Good morning and Assalamu alaikum. Myself Alina Khan from grade 8th. Today I'm going to speak on artificial intelligence. Artificial intelligence AI technology is designed to perform tasks that require human intelligence. That includes things like understanding language, solving problems, recognizing images and sounds, making decisions or predictions. Some of the simple examples of it are voice assistants like Siri or Alexa, chatbots और virtual assistants, self-driving car. पब्लिक स्कूल के कंप्यूटर लैब में, तो आइए चलिए यहाँ के स्टूडेंट से ये जानेंगे कि यहाँ की कंप्यूटर लैब में वो क्या सीखते हैं. हाय, Hi, सो टेल अस समथिंग अबाउट योर कंप्यूटर लैब. this is our computer lab. It is a place for learn, develop computer practical skills along with theoretical knowledge. It helps us to understand how computers and softwares are used in education, technology, and everyday life. In this lab, students work with operating systems, word processing, spreadsheets. This lab supports students in building essential computer skills needed for higher education and modern career. Thank you. अखलाक वो ज़ेवर है जो बाज़ार में नहीं मिलता, अखलाक वो ज़ेवर है जो बाज़ार में नहीं मिलता और जिसके पास हो वो कभी गरीब नहीं होता. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मेरे मोहतरम सामीन, मैं आयशा फ़ातिमा आपके सामने खड़ी होती हूँ किसी कहानी के साथ नहीं बल्कि एक सवाल के साथ कि क्या हम अपनी ताकत से पहचाने जाते हैं या अपने अखलाक से. मैं आज उस चीज़ पर बात करने आई हूँ जो अल्फाज से ज़्यादा बोलते हैं. अखलाक सिर्फ मुस्कुराना नहीं होता. अखलाक वो रवैया होता है जो हम अपने घर में, स्कूल में और उन लोगों के साथ दिखाते हैं जो हमसे कमज़ोर होते हैं. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से सबसे बेहतर वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हो. याद रखो, अच्छे अखलाक लोगों के दिल जीत लेते हैं. इसीलिए अगर कामयाबी पाना चाहते हो तो अपने अखलाक को आदत बनाओ. आज के ज़माने में सोशल मीडिया का इस्तेमाल 4 लोगों में से कोई ना कोई तो करता ही है. किसी के पास इंस्टाग्राम चलता है, तो किसी के पास फेसबुक, तो किसी के पास कोई और अलग सा जो सोशल मीडिया का एप्लीकेशन है वो चालू ही रहता है. पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी लेकर आता है? अगर हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की डिटेल में बात करें तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है. वैसे यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने इस बात का एक बहुत अच्छा सा डिबेट टॉपिक चुना है कि सोशल मीडिया हमारे लिए एडवांटेज लेकर आता है या एक डिसएडवांटेज. आइए देखते हैं कि एडवांटेज वाला सेक्शन जीतता है या डिसएडवांटेज वाला. I like to give the starting point. It is that despite expanding connections, it intensifies isolation and psychological harm. Social media does not isolate the society. It gives a voice to someone who is unheard from this physical world. Use of social media leads to the addictions and reduce the conductivity, and the using students are scrolling the reels and social medias using. See, honestly, social media is often criticized for its negative effects, but this all arises due to the irresponsible use of social media. Social media itself is not harmful, okay? So you need to use it wisely. But due to many social media platforms, people easily spread misinformation, which makes people believe it, and they try remedies which might harm themselves. For this kind of emergencies, there are many authorized websites which are widely available worldwide. During natural disasters, any last-minute update can save millions of lives. Social media gives us an opportunity of connecting with people all over the world, removing the geographical boundaries that are between us, and it also helps us to connect with people with the same interest as us, like art and literature. जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज के ज़माने में सेल्फ डिफेंस सीखना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो आइए यहाँ के एक स्टूडेंट से बात करते हैं और जानेंगे कि कितने साल से ये प्रैक्टिस कर रही है यहाँ पे, एंड कितने टूर्नामेंट्स इन्होंने खेले एंड इनका एक्सपीरियंस कैसा है.
Karate has been a really tough experience. It's not easy, obviously, as we have to practice a lot. We have to go through many competitions during this time. It did not just teach me self-defense, but also self-discipline, mental strength, and respect. Self-defense is really important in a girl's life. Nowadays, as we have been seeing many assaultive cases on women's, so that's really important. तो नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, आज हम आए हैं आजरा पब्लिक स्कूल मणिकोंडा अलकापुर ब्रांच में। वक्त फिलहाल इस शो में एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम बहुत जल्द लौटेंगे। नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम चमकते सितारे। तो जैसे कि आप जानते हैं, आज हम आए हैं आजरा पब्लिक स्कूल अलकापुर मणिकोंडा ब्रांच। फिलवक्त अब हम मौजूद है आजरा पब्लिक स्कूल के प्री प्राइमरी क्लास में, जहाँ पे ये बच्चे इतने प्यारे गेटअप्स पहन के हैं कि फ्रीडम फाइटर्स जो हमारे इंडिया के थे उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड जो अपनी पेट्रियोटिज्म है इस उम्र में, ये बहुत प्यारे नजर आते हैं। तो आइए चलिए इनसे बात करते हैं और ये जो आज कैरेक्टर जो तैयार हुए हैं उस बारे में इन्हीं की जबानी कुछ सुनते हैं। तो मेरे राइट साइड पे गांधी जी ठहरे हुए और मेरे लेफ्ट साइड पे कस्तूरबा गांधी। तो आइए चलिए यहाँ पे इन्हीं की जबानी सुनते हैं कि कस्तूरबा गांधी कौन थी और गांधी जी कौन थे। Good morning, everyone. I am Kasturba Gandhi. Everyone calls me Ba. The mother of Ashram. I am the wife of Mahatma Gandhi. I believe in non-violence and simple living. I love my country, India. Good morning, everyone. My name is Mahatma Gandhi ji. Today I will say about Gandhi ji. Everyone calls me father of nation. Thank you, Jai Hind. Good morning, everyone. I am Dr. B.R. Ambedkar. I love the Constitution of India. I believe in equality of India. Thank you. Good morning, everyone. My name is Indira Gandhi. My father's name is Jawaharlal Nehru. My slogan is Garibi Hatao. Thank you. Good morning, everyone. I, Azarif, representing Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of India. Children loved him, calling Chacha Nehru. बच्चों में सबसे ज्यादा खौफ रखने वाला सब्जेक्ट है मैथ्स। तो आज हमारे साथ मैथ्स के एचओडी मौजूद है मोहम्मद फरीद साहब। तो आइए उनसे बात करते हैं। एंड यहाँ के बच्चों में मैथ्स का खौफ है या नहीं है, मैथ्स के क्लासेस को ये लोग एंजॉय करते हैं, ये आज उन्हीं से मालूम करते हैं। Here in our school, every child enjoys doing maths because mathematics is a subject. It's like a game. If you know the rules of the game, you can play the game. Okay, so here we teach the rules. Here we teach the rules, the basics, the foundation, so that every child enjoys doing mathematics. And we teach mathematics with hands-on activities, with some day-to-day life practical applications of mathematics. Okay, and mathematics is very simple if you relate it with the real life. If you teach it like a subject, it's very difficult. So relate mathematics with the life, because mathematics is the foundation of every subject. Okay, if a child knows mathematics, he can do science, he can go in engineering, he can go in any field. Every door is open for him. This is quite easy when compared to the first one. Just we have to transpose this. 2x, if you write on the left side, it becomes minus 2x. LHS write as it is. 3x minus 2x is equal to 18 as it is. So what is 3x minus 2x? X or 1x we can write is equal to 18. So this is our solution. And how to check whether this answer is right or wrong? This value we have to substitute in the given equation. And LHS and RHS must be equal. Here in Azra Public School, we not only have an holistic approach, but we also equip children with modern technology learning. In a phrase, I would say, we cultivate minds, shape character, and empower students to thrive along with the teachers. For over 42 years, we have stood as a beacon of learning, guided by experienced teachers. We at Azra Public School aim to nurture holistic, confident, and responsible learners
by providing an inclusive, safe, and engaging learning environment that promotes critical thinking, creativity, ethical values, and constitutional ideals. Here, we provide equitable learning environment that respects diversity and supports the individual needs of every child. Every child carries a dream waiting to take flight, and we at Azra Public School provide the required velocity to reach the flight. A safe, supportive learning environment where every child matters. Here, learning is innovative, skill-based, preparing leaders for tomorrow. Thank you. First of all, I feel so proud to speak about our school, Azra Public School. So, actually our school stands for a discipline and academic excellence, and also a respectable, and here we nurture the young minds to become a respectable and disciplined and globally competent citizens, and we focus more on the holistic development. अजरा पब्लिक स्कूल अलकापुर हैदराबाद में बच्चों की पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, एआई जैसे एडवांस स्किल्स पर भी काफी जोर दिया जाता है ताकि वो समाज के साथ बदलते दौर के साथ कदम मिलाकर चल सके। इसी कोशिश के तहत सीबीएसई कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर टीचर्स कंडक्ट किया गया, जिसका मौजू था यूजर्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन क्लासरूम, जिसके अंदर रिसोर्स पर्सन्स मिस्टर पीवी साई रंगाराव और मिस नागेश्वरी सुगनिया जी ने शिरकत की, जहां अजरा पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा ने उनका वार्म वेलकम किया। सभी बच्चों ने भी इसमें शिरकत की, कुछ सीखा और इस प्रोग्राम का रिजल्ट काफी प्रोडक्टिव रहा। The artificial intelligent tools, how they can be used in the classroom, it's a very relevant and modern topic for the teachers. Probably that AI tools will rob away our job. That is a major concern throughout India, throughout world rather. I tell you very important thing, artificial intelligence, AI robot teacher cannot replace, at any cost, cannot replace the real, dynamic, living teacher in the classroom. Students how to make the assessment in very simple form. So like for making of the lesson plans, we are having, like most probably everyone are using this ChatGPT and so many tools they are using. But whatever the tools they are using, let it be of ChatGPT or Copilot or Perplexity, they have to use a specific and clear keyword or a prompt. So accordingly, they can complete their work fast. So the students also will likes to learn of visually than hearing of the teachers teaching you of using the books. If the visual learning will be gives them better knowledge and understanding. जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैनेजमेंट का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि इसलिए स्पोर्ट्स फील्ड में मैनेजमेंट हमको बहुत सारा हमारे तरफ से कोऑपरेटिव है अल्हम्दुलिल्लाह। इस साल हमने बहुत सारे स्पोर्ट्स में नताइज हासिल किए, जैसे कि हैंडबॉल में हम लोग SGF स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में हम लोगों ने दूसरा दर्जा हासिल किया अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और 2 लड़कों ने हमारे कामयाबी हासिल करते हुए स्टेट लेवल के लिए वो लोग गए हैं। स्टेट लेवल में वो लोग पार्टिसिपेट करके माशाल्लाह लौटे हैं। और बहुत सारे गेम्स जैसे कि कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, वॉलीबॉल जो भी है, इसमें भी बच्चे अच्छे नताइज लाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आने वाले सालों में बहुत सारे हम कोशिश करके इंशाल्लाह और भी नताइज हासिल करेंगे। फिजिकल एजुकेशन की हम बात करें तो उन तमाम बच्चों के लिए जो आपको देख रहे हैं, जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन को लेकर एक छोटा सा मैसेज क्या रहेगा आपका? जी फिज़िकल एजुकेशन के हिसाब से हर कोई खेलना चाहिए, खेलों में आगे बढ़ना चाहिए, और हमारे स्कूल को, हमारे देश को रिप्रेजेंट करना है। हमारा यही ख्वाब है कि बच्चे हमारे नेशनल्स तक पार्टिसिपेट करें, ओलंपिक्स तक जाएं और अच्छी सेहतयाब रहें, यही हमारी कोशिश रहती है। और घरों में भी माँ बाप अपने बच्चों को कोऑपरेटिव करना चाहिए। जी, I am PT of Azra Public School. We are providing indoor games like table tennis, carom, chess, ludo. We have so much knowledge because these indoor games like a carom, you have teamwork. We can play both games. In carom, team, individual play, and chess we have so much knowledge because we should keep our concentration on chess, and we can get any knowledge things, anything.
And table tennis. Table tennis also team game, but it's an individual game also. We can get flexibilities in our bodies. How can we play the game? How can we start? Our school has completed 42 years. We are the pioneer in both the cities, Hyderabad and Secunderabad. Under the guardianship of these visionaries, we get 100% result every year with the excellence marks, that is, it goes till 99%. I think you might have seen it on the boards and on the flyouts. So, in spite of having such an excellent result, we don't teach the children only for the marks. Our vision is the holistic development of the students. I ask the teachers to concentrate more on their holistic development to make them a good, true citizens of the country, which benefits the whole society as a whole. Thank you. तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है अज़रा ग्रुप ऑफ स्कूल्स के डायरेक्टर डॉक्टर फ़ायज़ा वलीउल्लाह। आइए उनसे बात करते हैं एंड यहाँ के जितने प्यारे बच्चे हैं इनका परसेप्शन जानेंगे एंड इनके बच्चों को लेके इनके माइंड में क्या थॉट्स है ये भी हम उन्हीं से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मैं अगर एकेडमिक्स की यहाँ पे बात करूँ तो आई कैन सी दैट लॉट ऑफ चिल्ड्रन आर इंडल्ज्ड इन एकेडमिक्स एज वेल एज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। तो आप इस बारे में जो मोटिवेशन बच्चों को देना ज़रूरी होता है उसका कैसे ख्याल रखती हैं? मैं बेहद मशकूर हूँ मुनसफ टीवी का कि इसने इतना अच्छा प्रोग्राम आपने इजाद किया और उसके तहत you get to know the department, you get to know the institution, you get to know the teachers, you get to know the children and cover them in the beautiful program here. तो मैं ये कहूँगी कि हम लोगों का विजन जो है एंड हमारा जो मिशन है, इट इज़ द मेन थिंग इज़ द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। तो हम यहाँ पे एक सिक्योर प्रेमिसेस में माशाल्लाह एक डाइवर्स जो है स्टाफ के साथ, एक बहुत हाईली क्वालिफाइड और बहुत एक्सपीरियंस स्टाफ के साथ हम ये इंस्टीट्यूशन रन कर रहे हैं माशाल्लाह। दिस इज़ आवर 10th year of Azra Public School, Alkapur branch, and mashallah we have grown bounds and leaps in this last decade. And जैसे आप देख रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं माशाल्लाह बच्चे इतने confident और इतने जो है ना holistically जो है ना वो लोग motivated हैं to learn and to grasp and to understand. ये मेरा हम सबका जो है ना ये विजन है और ये मिशन है कि बच्चे जो है एक respectful citizens बने, एक रहमदिल जो है ना नागरिक बने और एक कामयाब सिटीजन ऑफ इंडिया बने। आज के ज़माने में हम ये भी देखते हैं कि जब तक कम्युनिकेशन स्किल्स अंदर डेवलप ना हो तो यूजुअली लोग उन्हें ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं। तो आप आपके बच्चों को कम्युनिकेशन एंड जो पब्लिक रिलेशनशिप्स है उसके ऊपर कैसे मॉनिटर करते हैं? जी बहुत अच्छा सवाल किया हफ्सा आपने। हमारे पास एक कांस्टेंट एक जो है ना रेजिमेंटल जो है ना बच्चों के ऊपर जो वर्क होता है वो है पब्लिक स्पीकिंग। ये तमाम चीज़ें रेजिमेंटली जो है ना हमारे इंग्लिश टीचर्स बोलिए या हमारी जो है HMs बोलिए, दे वर्क ऑन दिस। और बच्चे जो है ना कॉन्फिडेंस कभी कभी जो है ना दे आर कैमरा शाई, दे आर स्टेज शाई, पब्लिक स्पीकिंग में थोड़ा सा पीछे हटते हैं। तो ये चीज़ को हम बहुत फोकस में रखते हैं। सफ़र एक माशाल्लाह लंबा वक्फा होता है जहाँ उन्हें वेरियस चीज़ें मुख्तलिफ चीज़ें उन्हें फेस करनी पड़ती हैं, तो वो तमाम चीज़ों के लिए भी प्रिपेयर दम। और अब हमारे माशाल्लाह वो ग्रुप ऑफ पेरेंट्स हैं जो हमारे एक्स स्टूडेंट्स भी हैं माशाल्लाह। सो दे कम बैक टू अस एंड दे से मैम नो अदर प्लेस देन अज़रा फॉर अस, फॉर आवर चिल्ड्रन। थैंक यू सो मच मैम। तो ये थी हमारे साथ अज़रा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की डायरेक्टर डॉक्टर फ़ायज़ा वलीउल्लाह, जिन्होंने बताया कि स्टूडेंट के अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ होना ज़रूरी है ताकि वो आगे चल के सोसाइटी नॉर्म्स के तहत आगे बढ़ सके। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं आज हम आए हैं अज़रा पब्लिक स्कूल, तो आइए यहाँ के डायरेक्टर साहब से मुलाकात करते हैं डॉक्टर शहबाज मिर्ज़ा एंड जानेंगे कि अज़रा पब्लिक स्कूल का विजन क्या है एंड उनका मिशन क्या है यहाँ पे इन छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे बच्चों को लेकर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि अज़रा पब्लिक स्कूल का विजन एंड मिशन क्या है एंड इन बच्चों को लेकर आपके दिल में, आपके दिमाग में क्या थॉट्स मौजूद है, उस बारे में हमें कुछ बताइए। ये जैसा आप लोग जानते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं बहुत मशकूर हूँ आप लोग यहाँ पर आए हमारे स्कूल के लिए। तो ये स्कूल हमारे डायरेक्टर साहब चेयरमैन मोहम्मद वलीउल्लाह साहब ने 45 ईयर्स अगो स्टार्ट किया था कि एक ही इंटेंशन से कि हैदराबाद में अच्छी CBSE स्कूल विथ अ वेरी गुड
वेरी बेसिक प्राइस सबको मिले। तो हमारा मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो CBSE एजुकेशन से बेहतरीन तरीके से यहाँ से कामयाब होकर ना ही बस अपने एजुकेशन में बट अपनी ज़िंदगी में कामयाब बने इंसान, वो हमारा मेन एम है। हमारी कोशिश मुसलसल यही होती है हमारी डेडिकेटेड टीचर्स के थ्रू कि हम बेहतरीन से एजुकेशन बनाएं, ना कि सिर्फ एजुकेटेड पर्सन बल्कि एक काबिल इंसान बनाने की हमारी कोशिश होती है यहाँ पर। ये पिछले 40 साल में आप अगर कोई भी प्रोफेशनल कॉलेज में जाकर देखें, आप यू विल बी सरप्राइज्ड कि एटलीस्ट एवरी ईयर एक लड़का या एक लड़की अजरा पब्लिक स्कूल की ज़रूर होगी आपको। आई कैन चैलेंज एवरीवन, तो जाकर हर प्रोफेशनल कॉलेज में हैदराबाद के अराउंड देखें आप। अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन, आजकल की बहुत ख़ास ज़रूरत है मुसलमान में और मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में कि इंसान की पर्सनालिटी डेवलप करे। तो हमारी हमेशा कोशिश यही होती है, दीनियात के थ्रू हम हमारे यहाँ अंडरस्टैंड कुरान के कांस्टेंट लेक्चर्स होते हैं, उनकी डेडिकेटेड टीम है वो यहाँ पर आती है, उनका करिकुलम हम रन करते हैं। रिसेंटली एक लड़की अपने आप को इतनी काबिल बनाई, उसके स्कॉलरशिप मिली है बेस्ड ऑन हर पर्सनालिटी टू डू सोशियोलॉजी इन अमेरिका। तो लास्ट बाइट हमने उसकी अपनी वेबसाइट पर भी रखी है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हमेशा नॉट एक लड़का या लड़की, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएं। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का चमकते सितारे का प्रोग्राम, जहां हम आए थे अजरा पब्लिक स्कूल अलकापुर मणिकोंडा ब्रांच में, जहां हमने तमाम बच्चों से मुलाकात की। सोसाइटी नॉर्म्स से आगे अगर बढ़ना है तो एक इंसान को अपने अंदर ये तमाम क्वालिटीज लाना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए चमकते सितारों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे मुंसिफ टीवी के साथ।